Good morning and assalamu alaikum to all of you. I hope that you are having your bags and your books with yourself. So let's discuss the topic first. In the yesterday's lecture, we have read about the renewable energy resources, and in renewable energy resources we have seen how power can be generated from sea. Okay, I have also given you people some questions related to the topic, which is on page number 43. So let's open your books and see the questions first and discuss the answer of these questions first, and then we will start our today's lecture. So open your books, open page number 43. Here is the questions. Okay, here is the topic, that was power from a sea. We can get power from the sea through. We can generate electricity through tidal barrages, wave power, and geothermal energy. Okay, and these were the questions which I have given to you. I will discuss question number 1 and 2 with you. Okay, question number 1 is describe a tidal barrage. Tidal barrage को describe करें. Okay, here is the answer. A tidal barrage is a long barrier built across the mouth of an estuary to control the water flow. A tidal power station is built on the tidal barrage. A tidal power station is built on the tidal barrage. Water flows from the river through the turbines of the barrage. Electricity is produced and the water is trapped. Water is released to flow back through the turbines, producing more electricity. Okay, this is the description of a tidal barrage. Okay, question number 1 part B. How can tidal barrage affect the environment? कैसे affect करता है environment को? Since tidal barrage change the flow of the river, seabirds and other animals might not be able to live in the estuary. ठीक है, इस तरह ये आपके environment को affect करता है. Number 2, describe one way in which electricity might be obtained from the wave power. किस तरह wave power से electricity generate हो सकती है? Floating generators could be used to generate electricity as they would move up and down with the waves. The movement would drive the generators and produce electricity. Okay, these were the answer of the questions, question number 1 and 2. Now let's start our today's lecture. Our today's topic is energy from living thing, and living things से energy gain करना. Okay, let's start the reading. Green plants have been trapping energy from the sun for millions of years. हज़ारों साल से जो green plants हैं वो sun से energy trap कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि energy को trap कर रहे हैं, ले रहे हैं कहाँ से? sun से. They use the energy to make sugar from carbon dioxide and water, और water and carbon dioxide and energy के presence में वो क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं. दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. जिस प्रोसेस के जरिए वो शुगर बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ रिलीजिंग द एनर्जी इन प्लांट्स. बहुत सारे तरीके हैं, नंबर ऑफ वेज हैं, तरीके हैं रिलीजिंग द एनर्जी इन प्लांट्स से एनर्जी को रिलीज करने के. सो वी कैन थिंक ऑफ प्लांट्स एज रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स. इसलिए हम प्लांट को रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कंसिडर करते हैं. Okay, biomass is a short for biological mass. Biomass is the short form of biological mass. So it is the word that implies to all living material. ये word है जो imply यानी कि imply यानी कि हर एक पे apply होना, यानी कि सारे living materials पर apply होता है. Wood is a renewable fuel. Wood क्या है? renewable fuel है. कैसे renewable है? In well managed forest पर में न्यू ट्रीज आर प्लांटेड एज अदर आर कट डाउन. जब पुराने कट डाउन कर लिए जाते हैं तो न्यू ट्रीज प्लांट कर दिए जाते हैं. तो वुड दोबारा, जाहिर सी बात है, जब नया प्लांट ग्रो करेगा, जब वो ओल्ड होगा तो वुड रीन्यूएबल यानी कि वुड जो है आपकी अगेन आपको अवेलेबल होगी. रूटिंग प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट प्रोड्यूस हीट एनर्जी.
रूटिंग प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट प्रोड्यूस रूटिंग यानी कि गलने सड़ने वाले एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड बाय माइक्रोब्स, वो एनर्जी कौन रिलीज करता है, माइक्रोब्स रिलीज करते हैं एज दे डाइजेस्ट द प्लांट मटेरियल, जब वो प्लांट मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। पेज रूटिंग बायोमास आल्सो प्रोड्यूस मीथेन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का नाम जो नेम है वो मीथेन है, ठीक है। आपका जो रूटिंग बायोमास है, रूटिंग बायोलॉजिकल मटेरियल है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। इन मॉडर्न सीवेज सिस्टम में दिस गैस इज कलेक्टेड, इस गैस को जो है जो आपका रूटिंग बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है उसे जमा कर लिया जाता है एंड यूज एज फ्यूल, और उसे फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैनी विलेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बायोगैस। इसको बायोगैस जी जो रूटिंग बायोमास से प्रोड्यूस होती है गैस, मीथेन गैस, नेचुरल गैस, उसे बायोगैस कहा जाता है। मैनी विलेजर्स यानी कि दुनिया के मुख्तलिफ विलेजेस में बायोगैस जनरेटर्स हैं, ठीक है, बायोगैस जनरेटर्स हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स वेस्ट इज पुट इनटू द टैंक। एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट है उसे टैंक में डाल दिया जाता है विद अ लिड, जिसके ऊपर ढक्कन लगा होता है। एज माइक्रोब्स डाइजेस्ट द वेस्ट, जब माइक्रोब्स वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है और मीथेन इज कलेक्टेड, और जो गैस प्रोड्यूस होती है उसे जमा कर लिया जाता है एंड यूज एज फ्यूल, और उसे फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है फॉर हीटिंग एंड कुकिंग, हीट एंड कुकिंग करने के लिए। फर्मेंटेशन का प्रोसेस, ओके। The sugar made by plants can be changed into alcohol. शुगर जो प्लांट बनाते हैं उसको अल्कोहल में चेंज किया जाता है बाय ईस्ट के थ्रू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। अल्कोहल विल बर्न, अल्कोहल को जलाया जा सकता है एंड सो इट कैन बी यूज एज फ्यूल, और उसे फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ ममालिक यानी कि कुछ हिस्सों में, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ब्राज़ील में स्पेशल क्रॉप्स सच एज शुगर कैन आर ग्रोन। ख़ास क्रॉप्स जैसे कि शुगर कैन को उगाया जाता है स्पेसिफिकली टू मेक अल्कोहल, ख़ास तौर पर अल्कोहल बनाने के लिए। शुगर कैन ग्रोज वेरी क्विकली, शुगर कैन बहुत जल्दी से ग्रो करता है। एंड द शुगर इज कंटेन इज़ वेरी इजी टू फर्मेंट, और जो शुगर होती है उसे आसानी से फर्मेंट किया जा सकता है। किस प्रोसेस के थ्रू, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू। और फर्मेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ईस्ट इस्तेमाल की जाती है। द अल्कोहल प्रोड्यूस इज मिक्स विद पेट्रोल, और जो अल्कोहल प्रोड्यूस होता है उसे पेट्रोल के साथ मिक्स कर दिया जाता है एंड यूज बाय कार्स एंड लॉरीज, और उसे कार और लॉरीज में इस्तेमाल किया जाता है। हियर इज द डायग्राम। प्रोड्यूसिंग इथेनॉल फ्रॉम शुगर कैन, इथेनॉल बनाना शुगर कैन से। देखिए शुगर को कट कर लिया गया स्मॉल पीसेज में और उसको क्रश करके उसका जूस निकाल किया गया। उस जूस से आप जो घरों में चीनी इस्तेमाल करते हैं कुछ वो बन गई, और कुछ को फर्मेंट कर लिया गया सेवरल डेज, यानी कि ईस्ट डालकर उसे ऐसा कुछ दिनों के लिए रख दिया गया, वो फर्मेंट हो गया। उसके नतीजे में आपके पास 95% इथेनॉल यानी कि अल्कोहल आ गया डिस्टिल, उसे फिल्टर करके आपके पास डिस्टिल अल्कोहल आ गया, ठीक है। ओके, हाउ डू लिविंग थिंग यूज एनर्जी। लिविंग थिंग एनर्जी कैसे इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट अपनी फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए। दिस प्रोसेस चेंजेस द एनर्जी इन सनलाइट टू फूड एनर्जी, यानी कि ये प्रोसेस क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को फूड एनर्जी में चेंज करता है। एनिमल गेट देयर फूड एनर्जी बाय ईटिंग अदर लिविंग थिंग्स। एनिमल अपनी फूड एनर्जी कहाँ से लेते हैं, दूसरे एनिमल्स को, लिविंग थिंग्स को खाकर। लिविंग थिंग्स यूज फूड एज देयर फ्यूल। लिविंग थिंग्स जैसे कि इंसान कैसे क्या यूज़ करते हैं, फूड को फ्यूल के तौर पर। टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर एवरी एक्टिविटी टू डू, यानी कि हर एक काम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हम कहाँ से लेते हैं, फूड से लेते हैं। फूड लिविंग थिंग्स का या लाइक ह्यूमंस का क्या है, फ्यूल है। एनिमल्स भी फूड खाते हैं, वो भी, उनमें पेट्रोल वगैरह तो नहीं डलता एनिमल्स और ह्यूमंस में, तो वो कहाँ से लेते हैं, दूसरे लिविंग थिंग्स को खाकर। मेजरिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर इन फूड, यानी कि स्टोर एक फूड में कितनी एनर्जी स्टोर है हम कैसे मेजर कर सकते हैं। डायग्राम शो एन एक्सपेरिमेंट दैट कैन बी डन टू कंपेयर द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट फूड इन डिफरेंट फूड में अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंपेयर करने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर लेंगे, वाटर में थर्मोमीटर हैंग करेंगे और जो आपने फूड लेनी है उसे बर्न करना है, ठीक है। हेयर शुगर इज़ बर्निंग, यहाँ पर शुगर को बर्न किया जा रहा है। ओके, एज द फूड बर्न्स, जब फूड जलेगी, इट रिलीज एनर्जी एज हीट, वो एनर्जी रिलीज़ करेगी हीट की फॉर्म में।
दिस हीट पासेज इनटू द वाटर, वो हीट वाटर में पास होगी, वाटर में जाएगी, कॉजिंग द टेम्परेचर टू राइज, जिसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। द मोर एनर्जी देयर इज़ इन द फूड, अगर एनर्जी ज़्यादा होगी फूड में, द वार्मर द वाटर विल बिकम, उतना ही ज़्यादा गर्म पानी होगा। ओके, हियर इज द डायग्राम, सॉरी टेबल। द टेबल शोज द रिजल्ट फॉर शुगर, अ पीनट एंड सम ड्राइड ब्रेड। ड्राइड ब्रेड ली है, शुगर लिया है और पीनट लिया है, ठीक है। 3 टेस्ट ट्यूब्स हो गई, एक में शुगर डाल दी हमने, सॉरी 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है। हमने उसमें किसका अमाउंट ऑफ एनर्जी चेक करना है, शुगर, पीनट और ड्राइड ब्रेड का सूखे हुए ब्रेड का, ठीक है। ओके, फिर हमने लिया मास ऑफ वाटर, देखें टेस्ट ट्यूब इस तरह ले ली, उसमें मास ऑफ वाटर यानी कि पानी का वेट कर लिया, तीनों में इक्वल है 50 ग्राम। उसके बाद ले लिया मास ऑफ फूड, तीनों फूड का, यानी कि शुगर भी आपने 50 ग्राम ली, पीनट भी आपने 50 ग्राम लिए, आपने ड्राइड ब्रेड भी 50 ग्राम लिए। उसके बाद हमने देखा मास ऑफ फूड, सॉरी मास ऑफ वाटर था ये, मास ऑफ फूड, सब फूड्स का एक जितना वज़न, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम। टेम्परेचर ऑफ वाटर है स्टार्ट, हमने चेक कर लिया, वाटर का टेम्परेचर तीनों में इक्वल है, ठीक है। देखिए कंडीशन सेम रखनी है, उसके बाद जब हम फूड बर्न करेंगे उसके बाद जो हीट पहुंचेगी उस पर हम डिटेक्ट करेंगे कि कितना हो। टेम्परेचर एट ऑफ वाटर एट फिनिश, ओके। हुआ क्या, जब स्टार्ट था तो 21 डिग्री था तीनों का, तो जब हमने शुगर बर्न की तो आपने उसके बाद मेजर किया, टेम्परेचर देखा तो 71 डिग्री था। जब हमने पीनट बर्न की तो वाटर का टेम्परेचर देखा 91 डिग्री था, और जब हमने ड्राइड ब्रेड मेजर की तो हमने देखा वाटर का टेम्परेचर क्या था, 51। ओके, अब हम क्या कर लेंगे, देखिए आपका इनिशियल टेम्परेचर 21 था, 71 आपका फाइनल टेम्परेचर था, 71 में से 21 माइनस करें, कितना डिफरेंस है, 50 डिग्री। इसी तरह 91 में से 20 किया तो 70 डिग्री डिफरेंस आया, और 51 से 21 किया तो 30, 51 से 21 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री। तो हमारे पास ये टेम्परेचर का राइज आ गया, ठीक है, यानी कि कितना टेम्परेचर बढ़ा है शुगर की वजह से, पीनट की वजह से। हमने इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी चेक करनी है। अब हम फार्मूला लगाएंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। बाय यूजिंग द फार्मूला गिवन बिलो, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फूड में अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट करना। एनर्जी इन जूल्स में एनर्जी कैलकुलेट होती है। मास ऑफ वाटर सब में कितना है, 50 ml, ठीक है, 50 ले लिया। 4.2 कांस्टेंट है, हर एक में यूज़ होगा। उसके बाद टेम्परेचर कितना राइज हुआ है, देखिए शुगर में अगर हम शुगर के फाइंड आउट कर रहे हैं तो 50 लगाएंगे, अगर हम पीनट की फाइंड आउट कर रहे हैं तो 70 लगाएंगे, और अगर हम ड्राइड ब्रेड का फाइंड आउट कर रहे हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी तो हम 30 यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम किसका एग्जांपल है, शुगर का। 50 इसका वेट मास ऑफ वाटर था, 4.2 कांस्टेंट था, और शुगर का आपका टेम्परेचर राइज कितना है, 50। इन सब को मल्टीप्लाई किया और 1 से डिवाइड कर दिया, तो इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 10.5 किलो जूल्स या फिर 10,500 जूल्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग अब क्या कीजिएगा, आप लोग ट्राई टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ पीनट एंड ड्राइड ब्रेड एज वेल, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि किस तरह फाइंड आउट हुआ। ओके, these are the question of test yourself on page number 45। इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने की ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। Here we have completed our chapter number 3। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह we will meet in next lecture with the exercise। हम अगले लेक्चर में आएंगे एक्सरसाइज के साथ, हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।